Good morning, dear parents and dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4th, Subject Science, Chapter number 4 and Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then may you clear to related teacher. आपको इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जैसे स्कूल ओपन होगा आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर से पूछ लीजिए. ओके, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर एडेप्टेशन. Need for animal adaptation. That means why do animal need adaptation? An animal lives in a place where it can find food, water, shelter and is able to reproduce. Many changes occur in the natural surrounding in which an animal lives. It is therefore important animals to adapt themselves to these changes or else they will die. As I told you in the previous lecture, if the animal not get adapted towards its environment, that means it will die. Okay, so animals, wherever the animal lives, in a place where the animal lives, that means it can find their food, it can find the water to drink, it can find the shelter to live or is able to reproduce. Okay, that means, and if the animal wants to do all these things, it needs to be adapted towards the बताया था. एनिमल्स कहाँ रहता है? अपने हैबिटेट में रहता है, मतलब अपने घर पे. आप अपने घर पे रहते हो तो आपको वहाँ खाना पीना रहने की जगह सब मिलता है. वैसे ही एनिमल जहाँ रहता है, जहाँ उसके घर पे रहता है, जो जैसे कोई भी जो भी उसका घर हो जहाँ रहता है वो, वहाँ पे उसको खाने के लिए खाना मिलता है, पीने के लिए पानी, शेल्टर, रहने के लिए जगह और अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं, वो जन्म दे सकते हैं. अगर एनिमल्स किसी भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं ढलेंगे, एडेप्टेड नहीं होंगे, उनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, तो एनिमल्स ये सब काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, एडेप्टेड नहीं हो रहा है, और वो फाइनली क्या हो जाएगा, मर जाएगा. अगर उसको नहीं मरना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडेप्टेड होना पड़ेगा. ओके, next, adaptation in animals that live on land. Now first category is we will learn that how the terrestrial animal, that means that live on the land, are adapted towards their environment. मतलब ऐसे एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं वो कैसे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या ढले हुए हैं, एडेप्टेड हैं, वो देखेंगे हम. एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ऐसे एनिमल जो ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. The adaptation of terrestrial animals differ according to their habitats. Now, the terrestrial animal adaptations are also vary from place to place. मतलब ज़मीन पे रहने वाले जानवरों में भी अलग अलग तरीके के क्या मिल सकते हैं, हमें एडेप्टेशन मिल सकते हैं. क्लियर? फर्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल्स दैट लिव इन हॉट सैंडी डेजर्ट. ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं, camels, kangaroo rats, some kind of lizards, snakes, tortoises and owls have adapted to a life in the hot and sandy desert. Camels, kangaroo rat means rat का नाम है. Lizard means छिपकली, snakes means सांप, tortoise मतलब tortoise कछुए, ओके, owls मतलब उल्लू. ये क्या सब कहाँ रहते हैं, एकदम रेगिस्तान वाले एरिया में रहते हैं. तो ये कैसे एडेप्टेड है, इनके अंदर क्या क्या चेंजेस है देखते हैं. You can see this chart. This is the camel, this is the hump, okay, this is the thick skin, long legs. Now let's see, look, it has a long eyelashes. Eyelashes मतलब आँखों की पलके. Okay, it has a long eyelashes, लंबी लंबी eyelashes है. Inner portion of the mouth is leather like. You can see the second, it has a leather like mouth.
इसके मुंह के अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, लेदर जैसा है। लेदर का आता है ना, आपके जैकेट्स वगैरह आपने देखे होंगे, वैसा है। थर्ड, नोस्ट्रिल कैन बी क्लोज्ड एंड ओपन एट द विल, मीन्स नोस्ट्रिल मीन्स द पोर्स ऑफ द होल्स ऑफ द नोज। जो नाक के 2 छेद होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। ओके, तो वो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, खोल और बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लार्ज पैडेड फीट means if you have ever seen the cows and the horse feet, you can see there is a thick hard structure present at the foot that is known as the padded feet। आपने गाय घोड़े के देखे होंगे तो नीचे एकदम हार्ड इनके जो फुट होता है, जो पैर होता है, उसके नीचे एकदम हार्ड टाइप का मटेरियल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैडेड फीट। ओके, एंड पैरों की वो क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। सो ये सब क्या इनके एडेप्टेशन है। लेट्स सी, द कैमल इज अ hump that store excess food as fat. It survive on its fat when the food is scarce. Okay, scarce means the hump, the cubard which you can see on the camel's bag, that is store fat, excess food as a fat, okay, in the form of fat, and when there is no food, the fat present in the hump is used as a fruit। okay, जो कुबड़ आपको कैमल के शरीर के ऊपर नज़र आ रहा है उसमें पानी स्टोर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, खाना क्या होता है, स्टोर होता है। और किस रूप में होता है, फैट के रूप में। जब कभी खाने की कमी आती है तो कैमल का शरीर क्या करता है, उस कुबड़ में या उस हम्प में जो फैट प्रेजेंट होता है फूड के रूप में उसको यूज़ करता है। ओके, सेकेंड, इट कैन ओपन और क्लोज इट नोस्ट्रिल एट विल व्हेन द सैंड ब्लोज इन द डेजर्ट। इट क्लोजेज इन नोस्ट्रिल टू प्रिवेंट सैंड फ्रॉम गेटिंग इनसाइड। व्हेन there is a storm and when there is a sand blowing in the desert, the nostrils, the third one, the nostril, you can see it can be open in the and close at the will। मतलब कैमल जब चाहे अपने नाक के आगे की जो स्किन है उसको बंद या क्लोज कर सकता है, उसको खोल या बंद कर सकता है जब कभी भी डेजर्ट में क्या हो रही हो, मिट्टी उड़ रही हो, तो मिट्टी अंदर नहीं जाए इस वजह से वो अपने नाक के छेदों को बंद या खोल सकता है। इट हैज़ 2 रो ऑफ आई pair of the eyelashes so it can prevent the sand from getting inside into its eye। मतलब इसके जो आई लैशेज है, आँखों की पलकें, उसके दो आँखों की पलकें हमारे देखेंगे, हमें एक ऊपर एक नीचे, मतलब लेकिन इसकी एक आँख में दो क्या होती है, पलकें होती है, ताकि आँख में, और एक लंबी लंबी पलकें भी होती है ताकि उसकी आँखों में मिट्टी ना जाए। The inner portion of the mouth is leather-like and it is able to chew the thorny plants that grow in the desert। As you know very well, in the desert mostly the plants are thorny, that means उनके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तान में। अब वही खाना होता है कैमल्स का, तो वही प्लांट खाएंगे कांटे वाले। सो इनके मुंह क्या होता है, मुंह के अंदर वाला पार्ट क्या एकदम लेदर जैसा होता है, तो मतलब अगर वो कांटे वाले पेड़ खाएंगे भी तो उनके कांटे नहीं चुभेंगे। ओके, the camel has a long legs that help to keep the body away from the hot sand। It has a padding on its feet। It make it easy for the camel to walk on the sand। Its toes are joined and so its feet do not sink into the sand while walking। As you saw that the camel has a long leg, okay, you can see long leg and their toes are joined together and they have a large padded feet। आपने देखा कि इनके पैरों के नीचे एकदम पैड होता है, मोटा सा हार्ड सा। ओके, इनके पैरों के जो अंगुलियाँ होती है वो भी जुड़ी हुई होती है और उनके जो लेग्स होते हैं, जो पैर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लंबे। क्यों? ताकि वो जो इतनी गर्म जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, जो लंबे पैर क्या करते हैं, उसको, उसकी बॉडी को उस गर्म मिट्टी से दूर रखते हैं।
वो मिट्टी में ना धंस जाए, इस वजह से उनको बचाता है. ओके. It has a thick skin on its body which protects it from the intense heat of the desert. That means the skin of the camel is thick, so it can escape from the heat of the desert. मतलब रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है, तो उसकी स्किन, उसकी जो चमड़ी है वो क्या बहुत मोटी है, ताकि वो गर्मी से बच सके. Some animals such as land crab, desert tortoise and snakes become inactive during the hot summer month to prevent the loss of water from their bodies, and this period of inactivity is called estivation. ESTIVATION, estivation means the animals which live in the desert go sleep for a long time in the summer so they can डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर इन द समर. जैसा कि आप जानते हैं डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो कुछ एनिमल्स क्या होता है, जब गर्मी आती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है डेजर्ट में, वो क्या करते हैं, सो जाते हैं कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं. तो जब वो सोते हैं ना, उनको खाने की ज़रूरत होती है ना उनको पीने की, वो सो जाते हैं. ओके, मरते नहीं है, क्योंकि उनके बॉडी का फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल धीरे काम करने लग जाता है. ठीक है, तो सो जाते हैं. तो सोते हैं तब जो पानी की कमी वगैरह होती है, या पानी जो समर में गर्मी की वजह से पानी उनकी बॉडी से निकलता है, वो नहीं निकलता, बहुत कम, ना के बराबर निकलता है. वो एकदम सैंड के बिल्कुल मिट्टी के अंदर जाके, गहरी मिट्टी में जाके सो जाते हैं. क्लियर, ताकि वो धूप से भी, गर्मी से भी बच सके और पानी की कमी भी ना आए. सो here we complete our this lecture 2. ये कैमल के एडेप्टेशन थे. लॉन्ग लेग, बड़ी बड़ी आई लैशेस, माउथ के अंदर लेदर जैसा पोर्शन, उनकी नोस्ट्रिल जो नाक होती है वो अपनी मर्जी से खोल बंद कर सकते हैं, लार्ज पैड या फिर उनकी अंगुलियाँ जुड़ी हुई है, ये सब क्या है, एडेप्टेशन है. क्लियर. द होमवर्क इज़ ओनली वन, दैट मीन्स स्कैर्स, दैट इज़ कमी. स्कैर्स का मतलब क्या होता है, कमी. क्लियर. So you have to do this work in the rough notebook, click the picture, send it on the school WhatsApp number before 9 o'clock. आपको ये काम अपनी रफ नोटबुक में करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर रात का 9 बजे से पहले सेंड करना है. थैंक यू. टिल देन हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ.